नमस्कार द वॉयसाच्या ह्या खाशेल्या मुलाखतीत तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आयज ह्या मुलाखतीत आमी एक खूब म्हत्वाचो विशय चर्चेक घेतात, ताज्या विशीं जाणून घेवपाचो यत्न करतात आनी तो म्हळ्यार ऑर्गन डोनेशन. ऑर्गन डोनेशना बद्दल खूब अवेरनेस हालीं गोंयांत जावपाक लागला. खुबशे लोक मुखारूय सरतात ऑर्गन डोनेशन करपाक. खुबशे लोक जाणा जावन घेवपाचो यत्न करतात कारण खुबशे गैरसमज आसात, खुबशे प्रश्न आसात. ह्याच प्रश्नांच्यो जापो सोदपाचो आमचो आज यत्न आसा आनी ह्यो जापो दिवपाक आमच्या मदीं भारतांतले नामनेचे दोतोर हांगा आसात, डॉक्टर कर्नल अवनीश सेठ. Doctor, welcome to the show. Thank you. Doctor is a gastroenterologist and most importantly, he's the country head of Manipal Organ Sharing and Transplant. Doctor has immense experience in this field. He has been working continuously for last many years. And Doctor, I would want to start by asking you, I know there's a lot of awareness today about organ donation, and like I said, a lot of Goans also want to donate. A lot of Goans want to know about organ donations, but I'm sure the challenges are still as it is. I don't know if they've increased, but what are the challenges when it comes to organ donation? Organ donation had a lot of challenges 20 years ago, but now we are doing better and better. You'll be happy to know that we are 8th in the world in organ donation. Hey. But we are such a large country that it doesn't percolate to the length and breadth of the country. हम लोगों ने 2025 में 1200 लोगों ने अपना पूरा अंगदान किया. Okay. लेकिन इसमें से जो 80% है is confined to 5 states, Okay. South and the West. So this is a program where everyone has to put their shoulder to the wheel and every part of the country should be contributing. Right. So expertise सब है. अवेयरनेस भी 20 साल में काफ़ी हो गया है. हॉस्पिटल पीस जो है, जो हम लोग ब्रेन डेथ को डिक्लेयर करना, उसका ट्रेनिंग करना और उसका ऑडिट करना कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, दैट इज़ द पार्ट विच हैज़ टू इम्प्रूव एंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. Yeah. Right. But Doctor, what are the hindrances because of which people are not coming forward? We have heard of a lot of taboos, we have heard of a lot of misinformation. Is it still there, and are these the reasons why people are still not coming forward to donate organs? I think people are coming forward. Okay. People in the South and West, about 5 out of 10 people are saying yes. Okay. In North India, about 20 to 30% people say yes. But we are not asking enough people. You know, if we ask 10 people and if 2 say yes, it becomes 2. Right. But if we ask 100 people, then 20 are saying yes. Yeah. So where we are going wrong is we are not identifying brain death early. We are not talking to the family with experts in such a way that a grieving family can understand what is going on. Right. See, what the government of India has now done is to increase awareness. We have started from the grassroots level. So you have NCRT book having a chapter on brain death and organ donation. Right. We have in all the medical colleges 3 classes on organ donation. So if the general public is aware, in the last now 20 years, people are very aware. Right. Then when this topic is suddenly broached at a very difficult time for the family, True. it becomes much easier for them to understand. Yeah. Also, to increase awareness, now when we apply for a driving license, we have an option whether we want to donate organs or not. Right. And गोवा में भी ये ड्राइविंग लाइसेंस जब बनाते हैं तो उसमें वो प्रोविजन होता है. Okay. Yeah. So, Doctor, I wanted to ask you the same thing. Like you said, it's a difficult time for the families to decide when, their loved ones are on the deathbed. But what if I want to pledge my organs when I'm absolutely fine? As voluntarily, I would want to pledge my organs where my family already knows that, I have pledged the organs and there's no hindrance to go about it. Is there a way by which I can pledge it now? Like someone like me, if I want to today tell my family that, I have already pledged my organs, what is the way ahead? आपको कल ही कर देना चाहिए था. सो बेसिकली सबको करना चाहिए. हम लोग क्यों मरने के बाद जला देते हैं, दफना देते हैं, जब इतने लोगों को ज़रूरत है. 3 लाख पीपल नीड ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स एवरी ईयर. तो इसका बड़ा सिंपल सा सिस्टम होता है. यू हैव टू बी अ माइनर नहीं कर सकते. जब आप 18 ईयर्स की एज पे अचीव हो जाते हैं तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं. एक हमारा QR कोड है दैट यू कैन शो इन योर प्रोग्राम. आप उसको स्कैन करिए, अपना आधार कार्ड डालिए एंड यू कैन प्लेज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
what I want to highlight is that pledging doesn't make you a donor. It just is an intent कि जब आप pledge करें तो अपनी family को ज़रूर बताएं कि हमने हाँ. ऐसा किया. Right. They must know. No. Because organ donation normal death में नहीं हो सकता आज की डेट पे इंडिया में ज़्यादा. Right. ब्रेन डेथ सिचुएशन में होता है. होता है. तो आपको हेड इंजरी हो या स्ट्रोक हो, फिर आप वेंटिलेटर पे किसी अस्पताल में हो, और फिर आपकी ब्रेन डेथ या मस्तिष्क मृत्यु हो, दैट सिचुएशन में ऑर्गन डोनेशन होता है. Right. सो हमें उसका इंटेंट दिखाना चाहिए. बट आई विल गिव यू वन एग्जांपल. मैं एक दिन 5th फ्लोर पे अपने हॉस्पिटल में दिल्ली में बैठा हुआ था, और एक जेंटलमैन आए कि अब मैं कलकत्ता से आया हूँ, आपका नाम सुन के, और ही वाज कैरिंग अ थैला एंड अम्ब्रेला. चप्पल में आए, बोले मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों देश के बाहर है, मेरा ध्यान नहीं रखते, वाइफ की मेरी डेथ हो गई है, अब मैं आपके पास आ गया हूँ, अब आपकी खिड़की से मैं नीचे कूद जाऊंगा और आप मेरे ऑर्गन डोनेशन कर Oh my लीजिए. God. Such a tricky situation. या सो आई टोल्ड हिम. तो पहले तो मैं उठ के खिड़की और उनके बीच में आ गया, उनको पानी पिलाया, फिर उनको समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी को साइन करना पड़ेगा. Right. Right. मेकिंग अ विल और गेटिंग अ डोनर कार्ड आपका जो है, दैट इज नॉट द फाइनल आंसर. समबडी फ्रॉम द फैमिली हैज टू साइन. देन ही अंडरस्टूड दैट Yeah. खाली डोनर होना इज नॉट इनफ. Not enough. Yeah. But what if there's no family? मतलब जैसे लावारिस कहते हैं हम, ऐसे सिचुएशन में कैन द ऐसा हॉस्पिटल टेक अ सिचुएशंस हाँ होता है. उसके ऊपर है गवर्नमेंट का लॉ कि अगर 48 आवर्स तक कोई अनक्लेम्ड नहीं आते हैं, देन द रजिस्ट्रार ऑफ द हॉस्पिटल बिकम्स द ओनर ऑफ दैट बॉडी. बट हम लोग कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में चाहते हैं कि ऑर्गन डोनेशन ना हो. राइट. राइट. There is no point in pursuing something which may not be very appropriate. So organ donation एक ऐसी चीज है जो हमेशा legal limits के साथ ही करना चाहिए. Right. And one should never overstretch. Yeah, but can the legal limits be stretched to an extent where the body becomes the government's property after a person is dead? In which case, so many lives can be saved that the doctors don't need the permission of the family. Is there a situation like this in any other country Yeah. across the I world? think the questions you're asking are absolutely spot on because that is the need of the hour. Yeah. हमारे देश में क्या होता है कि जब हम उस सिचुएशन में होते हैं, द फैमिली हैज टू साइन. ये ऑप्ट इन सिस्टम होता है. कुछ देशों में जैसे कि स्पेन में everyone is an organ donor unless you have signed to opt out पहले Oh, से. okay. So it's the other way It's around. the other way around. Yeah. So that is a very different system. और उसके लिए जो देश होता है ना, उनको ऑर्गन डोनेशन कुछ 10-20 साल तक करना होता है ताकि सबको समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं. Right. Right. इवन देन अगर हम ऑप्ट आउट वाला सिस्टम रखते हैं जहाँ सब लोग ही डोनर हैं, उसमें भी सॉफ्ट आउट अच्छा रहता है. नॉट अ हार्ड सिस्टम Right. बट अ सॉफ्ट ऑप्ट आउट, ताकि उसमें भी फैमिली का हाँ बोलना जरूरी है. सम कंट्रीज हैव ट्राइड अ हार्ड ऑप्ट आउट कि आपकी मर्जी नहीं है फैमिली की, Yeah. अब आपका सबका हम ऑर्गन्स लेंगे. दैट ऑल्सो बैकफायर्स. Yeah. Right. सो हम जो सजेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट में बात हो रही है कि नेत्रदान कॉर्निया डोनेशन के लिए अगर हम सबको कर दें, सबको. दैट विल बी अ गुड स्टार्ट. Right. Right. पहले तो ऑर्गन डोनेशन सारी कंट्री में हो, कुछ सालों तक हो. Okay. फिर हम कॉर्निया डोनेशन के लिए सबको डोनर बना दें. दे कैन ऑप्ट आउट इफ दे वांट टू. Yeah. फिर बाद में आफ्टर 5-10 years we can think like that. But you have a point there. Doctor, also with regards to organ donation, a lot of people feel that organs can be stored or they can be kept till someone wants them. What is the time frame in which an organ can be donated? How fast it needs to be donated? सबसे पहले तो ऑर्गन्स का कोई बैंक नहीं होता. ऑर्गन्स को आप स्टोर नहीं कर सकते. Cornea also? सो पहले तो हम बताते हैं कि ऑर्गन्स और टिश्यूज में क्या फर्क है. Okay. Organs are like your heart and lung, like your liver and kidney, like pancreas and small intestine. ये तब तक जिंदा रहते हैं जब तक हार्ट चल रहा होता है. Okay. Whereas tissues can survive for 6 to 8 hours even when the heart has stopped. Okay. Right. तो इसमें आपका स्किन, बोन्स, आईज, इस तरह की चीजें आ जाती हैं. सो हम जब कॉर्निया डोनेशन या स्किन डोनेशन की बात करें तो वो टिश्यू डोनेशन है. Okay. हम चाहते हैं कि लोग टिश्यू डोनेशन तो करें ही करें, लेकिन ऑर्गन डोनेशन पे ही करें. और अगर हम नेत्रदान कर रहे हैं, हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हमने बहुत कर दिया, हम थोड़ा सा और आगे सोचें. तो अब आप देखिए लोग अपने हैंड्स का भी डोनेशन कर देते हैं, विच इज सच अ बिग थिंग. Yeah, of course. सो
टिश्यू डोनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गन डोनेशन. टिश्यू डोनेशन आप मरने के 6 से 8 घंटे बाद भी कर सकते हो. Okay. ऑर्गन डोनेशन के लिए यू हैव टू बी up and running. Right, right. Doctor, many a times we have heard of this green corridor, and in media also we tend to run after the ambulance and track the ambulance and see the entire scene. But many people don't know what is a green corridor. What exactly is this green corridor? What's the need? उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके पुराने क्वेश्चन पे फिर जाता हूँ जी. कि अगर हम किसी का हार्ट लेते हैं डोनेशन में मरने के बाद, ब्रेन डेथ के बाद, तो वो 4 घंटे के अंदर रिसिपिएंट में पंप करना शुरू हो जाना चाहिए. सो हार्ट इज द मोस्ट अनफॉरगिविंग ऑर्गन, जो 4 घंटे के अंदर अगर नहीं डालेंगे तो वो नहीं चलता है. और जैसे हमारा किडनी है वो सबसे ज्यादा फॉरगिविंग है, वो आप 24 घंटे बाद भी डाल देंगे तो वो काम करते हैं. बीच में 12 घंटे लिवर, 6-8 घंटे लंग्स, ऐसे बीच वाले ऑर्गन्स है. बट इफ यू रिमेंबर, हार्ट हैज 4 आवर्स एंड किडनी हैज 24 आवर्स. बीच में सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं. अब अगर आपको हार्ट को बॉम्बे में से लेना है दिल्ली आके फॉर एग्जांपल, तो आप सोचिए 4 घंटे में आप कैसे करेंगे. सो द ओनली वे इज दैट हम फ्लाइट से ले जाएं, एंड जो ग्राउंड पार्ट है उसका, उसको हम ग्रीन कॉरिडोर बोलते हैं, जहाँ सारी लाइट्स ग्रीन कर दी जाएंगी आपके लिए. बाकी सबके लिए रेड और आपके लिए ग्रीन. सो ग्रीन कॉरिडोर खाली आपके लिए है. दूसरों को थोड़ी सी असुविधा होती है, लेकिन किसी की जान भी तो बच रही है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Doctor, you have been coming to Goa for a pretty long time now, and you are conducting workshops with people and stakeholders. How satisfactory is the situation in Goa, and do you think Goa can lead the way in organ donation? हर जगह शुरुआत ऐसे ही होती है. अब मैं भी गोवन बन गया हूँ. आई ऑल्सो हैव अ पार्ट ऑफ नाइस प्रॉपर्टी हियर. सो हम लोग देखते हैं आके कि जहाँ भी हम लोगों ने शुरू किया ऐसे शुरू करते हैं. तो पहले तो ये तभी हो पाता है जब इसकी ज़रूरत महसूस हो. सो ऑर्गन डोनेशन इज नॉट समथिंग दैट हैपन्स ऑन इट्स ओन. इट हैज़ टू बी डन, इट हैज़ टू बी ड्रिवन. अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने मन की बात में 5 बार ऑर्गन डोनेशन के बारे में मेंशन किया है कि हमें करना चाहिए. सो सिमिलरली वी वुड वांट दैट our chief minister spread the same message in every state so that it percolates down to every hospital कि आपको करना चाहिए. And I think they should also pledge and start by setting up an example. Why not? मैं तो सोचता हूँ कि जैसे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हम बड़ा सा देते हैं, हमें छोटे छोटे प्लेजिंग कार्ड नहीं, इन सब हेल्थ मिनिस्टर और सारे चीफ मिनिस्टर्स के बड़े बड़े मैन ऑफ द मैच कार्ड जैसा प्लेज बना के उनके चेयर के पीछे लगाना चाहिए. अवेयरनेस बढ़ना चाहिए. सो गोवा स्टार्टिंग लाइक एवरीबडी हैज डन. हमारे यहाँ पे 3 हॉस्पिटल्स में किडनी ट्रांसप्लांट आज की डेट पे हो रहा है. और धीरे धीरे किडनी के बाद हर जगह लिवर होता है, फिर हार्ट ट्रांसप्लांट होता है. तो जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है हेल्थ केयर में, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू स्टेट कि ऑर्गन डोनेशन को कभी अलग से नहीं देखना चाहिए. अगर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप क्वालिटी का है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ बचा भी पाते हैं. और जिनमें हम नहीं सक्सीड होते उसमें फिर एंड ऑफ लाइफ केयर के प्रोटोकॉल्स शुरू हो जाते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर हम 1.7 लाख पीपल रोड एक्सीडेंट डेथ इंडिया में हो जाती है. अब इसमें से कितने लोग हॉस्पिटल में वेंटिलेटर में पहुंच सकते हैं, ये देखने की बात है. जो पहुंच सकते थे, अगर आपकी रोड साइड पे ही डेथ हो गई, अगर आपके पास एम्बुलेंसेज नहीं है, एयर इवैक्यूएशन नहीं है, फिर आप जहां हॉस्पिटल में ला रहे हो वहां वेंटिलेटर नहीं है, तो फिर उनको बचाएंगे कैसे? सो इतनों में से अगर हम 70-80% को बचा लेंगे, 20% को नहीं बचा पाएंगे, उनके साथ फिर ऑर्गन डोनेशन की बात करनी चाहिए. सो वी हैव टू क्रिएट अ फैसिलिटी वेयर वी आर डूइंग वेरी हाई एंड treatment for all diseases in the state. True. Then we have to create a facility where we do all the transplants in the state, ताकि किसी को गोवा से बाहर ना जाना पड़े लिवर ट्रांसप्लांट कराने, हार्ट ट्रांसप्लांट कराने. Then you'll find organ donation will pick up. उसको आइसोलेशन में नहीं देखें.
एंड लुकिंग एट रोड कनेक्टिविटी इन गोवा, और वैसे भी गोवा इज अ स्मॉल स्टेट, सो ये काफ़ी मुमकिन हो सकता है क्या गोवा में, बिकॉज यू नो वी हैव द एम्बुलेंस फैसिलिटी और हॉस्पिटल्स आर देयर, बट एक डेडिकेटेड, मतलब ये इस एक ही हॉस्पिटल में, उसी प्रकार के हॉस्पिटल में होना चाहिए, ऐसा कुछ रूल है क्या, या फिर ऐसा नहीं है, द हेल्थ सेंटर्स कैन ऑल्सो कहीं भी हो सकता है, आईसीयू बेड्स होने चाहिए, बट ओके जो मॉडल मैं एनविसाज करूंगा गोवा के लिए, अगर आप मेरे से पूछें, गोवा में ट्रॉमा बहुत होता है, टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, टू व्हीलर्स भी होते हैं और बिल्कुल। एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, डेडिकेटेड ट्रॉमा सेंटर, जैसा कि मैंने दिल्ली में देखा, एम्स ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ पे आपके 50 आईसीयू बेड्स ट्रॉमा के लिए है विद वेंटिलेटर। ओके ओके अगर एक छोटे से न्यूरोसर्जिकल आईसीयू में हम नॉर्मल सारे सर्जरीज भी रखें और ट्रॉमा भी रखें, तो एक तो वेंटिलेटर पूरे नहीं होते, नहीं दूसरा अगर कोई वेट कर रहा है वेंटिलेटर की कि मेरे को भी मिलना चाहिए, and then you can't keep somebody brain dead on ventilator Right. talking about organ donation when there are 10 people waiting. right So end of the day it comes to the story of how much we are investing in healthcare. हम एज अ कंट्री से शुरू होता है कि हम अपना कितना परसेंटेज हेल्थ में दे रहे हैं, हम लोग 2% देते हैं, yeah विकसित देश 14-15% देते हैं, right तो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कैसे हैं, नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स कैसे हैं, नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स कैसे हैं, वहाँ से फिर कहानी निकलती है। बट इफ वी हैव अ हाई क्वालिटी ट्रॉमा सेंटर इन गोवा with about say 20-30 beds dedicated to trauma, okay that we'll be saving hundreds of lives, yeah and if we lose one person, that person will save 8 more lives. true So it's a win-win situation. right doctor, before I end the interview, any positive story in your journey which you can share with regards to organ donation, if you can recollect any such incidents? बहुत सारे हैं लेकिन मैं जो आपको शेयर करूंगा अपनी मदर इन लॉ का करूंगा। 2013 में शी हैड अ मैसिव ब्रेन हेमरेज और देन वी लॉस्ट हर, बट हम लोगों ने उनका फिर अंगदान किया एंड वी transplanted her liver, her kidneys, her eyes into 5 people. Okay. और बड़ा अच्छा लगता था फैमिली को सोच के कि हमने ऐसा किया। और आज से 5 साल पहले मैं एक पब्लिक लेक्चर ले रहा था सफदरजंग हॉस्पिटल में, जहाँ मैंने कुछ स्लाइड्स वगैरह दिखाई, और वो न्यू ईयर्स ईव का था, तो मैं उनका ऑबिचुरी हमने छापा था, तो वो मैं दिखा रहा था। सो जब क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ तो एक यंग लेडी ने अपना हाथ खड़ा किया और उसने क्वेश्चन नहीं पूछा, वो ऊपर डायस पे आ गई और मेरा पैर छू के बोलती हैं, सर आपकी मदर का लिवर मेरे अंदर। Oh my God. Exactly. तो आप देखिए कि जब मैंने उनसे हाथ मिलाया तो मेरे को लगा कि मैं तो अपनी माँ के साथ बिल्कुल हाथ मिला रहा हूँ। जी जी सो देन मैंने माइक उनको दे दिया, मैंने कहा आप कुछ बताइए, क्योंकि मेरा तो आधा घंटा बोलना बेकार ही हो गया अगर आप कुछ शब्द कह देंगे तो। राइट तो उन्होंने सुनाया कि कैसे शी वाज बेड रिडन एंड कोई लिवर डोनेशन हो नहीं रहा था उनके लिए, एंड शी वाज टोल्ड कि 3 महीने आपके बच्चे। राइट देन शी सेड मेरे ट्रांसप्लांट हो गया, मेरे को देखिए मैं 9 to 5 काम कर रही हूँ, एंड फिर शर्मा के बोली कि मेरी शादी भी हो गई है, जी और फिर शर्मा के बोली कि मेरे 1 साल का बच्चा भी है। ओह राइट So see how Yeah. one person can transform Exactly. so many lives. Very true. And I think we have seen this in films. लेकिन ये you saw this right in front of you. Doctor, thank you so much. Thank you. Thank you so much for taking out time from your very, very busy schedule and giving answers to many questions that I'm sure our viewers had. Thank you once again. अशाच तरेचे इंटरव्ह्यूज, अशाच तरेचे विषय घेऊन आम्ही तुमच्या मेरेन येत रावतले. तुम्ही पळयत रावात द वॉइस फॉर गॉड. The Voice for Goy.